Hello students, this is the economics part of your social science book and the title of the chapter is Poverty as a Challenge. This is the chapter number 3 and in this chapter we will see one of the most difficult challenge faced by independent India, poverty. After discussing this multi-dimensional problem through examples, the chapter discussed the way poverty is seen in social science. Poverty trends in India and the world are illustrated through the concept of the poverty line. Causes of poverty as well as anti-poverty measures taken by the government are also discussed. The chapter ends with broadening the official concept of poverty into human poverty. तो चिल्ड्रन इस चैप्टर में हम मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का जो है वह है पावर्टी और उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जो पावर्टी है उसे वर्ल्ड ने एक पावर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट के आधार पर उसे डिफाइन कर दिया है और इस चैप्टर में हम पावर्टी के कॉजेज और भी बाकी चीज़ों के गवर्नमेंट के कितने एफर्ट्स हैं इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। So at first, introduction. In our daily life, we come across many people who we think are poor. They could be landless, laborers in villages, or people living in overcrowded jhuggis in cities. They could be daily wages workers at construction sites or child workers in dhabas. They could also be beggars with children in tatters. We see poverty all around us. In fact, every fourth person in India is poor. This means roughly 270 million or 27 crore people in India live in poverty 2011 to 12 according. This also means that India has the largest single concentration of the poor in the world. This illustrates the seriousness of the challenge. तो चिल्ड्रन हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि गरीब होते हैं, जैसे कि कुछ बैगर हो गए, कुछ चाइल्ड वर्कर हो गए, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले हो गए, डेली मेहनताना लेकर काम करने वाले हो गए ऐसे लोग, और जो बहुत सारे लोग जो कि ओवर क्राउडेड झुग्गीज में रहते हैं। ये सारे लोग, हमारा जो भारत है ये एक प्रकार का बहुत ही बड़ा चैलेंज है जिसे वो फेस कर रहा है और हमारी जो लगभग फोर्थ पर्सन जो है मतलब अगर देखा जाए तो एवरेज के हिसाब से फोर्थ पर्सन जो है इंडिया का वो पुअर है। इसको रफली देखा जाए तो लगभग 27 करोड़ जो लोग हैं भारत के वो पुअर हैं, पावर्टी लाइन के अंदर में आते हैं 2011 और 12 के गणना के अनुसार। और इंडिया जो है इस हिसाब से देखा जाए तो वर्ल्ड में पुअर कंट्री कहला जाएगा। और यह एक जो चीज़ है यह आप समझ सकते हैं कि जो पावर्टी है यह कितना बड़ा चैलेंज है हमारे भारत के सामने। So children, here is given the two cases and you have to read about these cases by yourself. These two typical cases illustrate many dimensions of poverty. They show that poverty means hunger and lack of shelter. It also is a situation in which parents are not able to send their children to school or a situation where sick people cannot afford treatment. Poverty also means lack of clean water and sanitation facilities. It also means lack of a regular job at a minimum decent level. Above all, it means living with a sense of helplessness. Poor people are in a situation in which they are ill-treated at almost every place, in farms, factories, government offices, hospitals, railway stations, etc. Obviously, nobody would like to live in poverty. One of the biggest challenges of the independent India has been to bring millions of its people out of abject poverty. Mahatma Gandhi always insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering. तो चिल्ड्रन इन टू केसेस की स्टडीज़ के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि जो पावर्टी है, जो गरीबी है, वो
भूखमरी है और शेल्टर की कमी है। इसके साथ पावर्टी में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं और उन्हें ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। पावर्टी में साफ़ पानी भी लोगों को नहीं मिल पाता है और उन्हें सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ भी नहीं होती है। लोगों के पास रेगुलर जॉब नहीं होता है, उन्हें कम से कम मेहनताना मिलता है और वो हेल्पलेस होते हैं। आपने पुअर पीपल्स ज़रूर देखे होंगे, वो फार्म्स में, फैक्ट्रीज़ में, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में, हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशंस एक्सेट्रा कई जगहों पर काम करते हैं और बहुत बुरी तरह से उनको ट्रीट किया जाता है। तो स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति गरीबी में जीना नहीं चाहता है और जो पावर्टी है ये स्वतंत्र भारत का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हम वाकई में इंडिपेंडेंट तब होंगे जब हमारे देश में एक भी व्यक्ति पुअर नहीं होगा। Let's see the poverty as seen by social scientists. Since poverty has many facts, social scientists look at it through a variety of indicators. Usually, the indicators used relate to the levels of income and consumption. But now, poverty is looked through other social indicators like illiteracy level, lack of general resistance, healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, etc. Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now becoming very common. Social exclusion. According to this concept, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in a poor surrounding with other poor people, excluded from enjoying social equality of better half people in better surroundings. Social exclusion can be both a cause as well as a consequence of poverty in the usual sense. Broadly, it is a process through which individuals or groups are excluded from facilities, benefits, and opportunities that others enjoy. A typical example is the working of the caste system in India, in which people belonging to certain caste are excluded from equal opportunities. Social exclusion thus may lead to, but can cause more damage than having a very low income. तो चिल्ड्रन, पहले पावर्टी जो थी उसे सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक ही सीमित किया गया था, लेकिन अब जो सोशल साइंटिस्ट हैं उन्होंने पावर्टी को इलिटरेसी लेवल पर, जनरल रेजिस्टेंस की कमी और हेल्थ केयर की कमी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की कमी, सैनिटाइजेशन की कमी, इन सारी कमियों को भी गरीबी में इन्वॉल्व कर लिया है, गरीबी में इंक्लूड कर लिया है। गरीबी का आकलन एक तो सोशल एक्सक्लूजन मीन्स सामाजिक बहिष्कार और दूसरा वल्नरेबिलिटी मतलब असुरक्षा को के मापदंडों पर किया जा सकता है। सोशल एक्सक्लूजन में क्या है, कुछ लोग जो पावर्टी गरीबी में रहते हैं, पुअर हैं, वो उनके आसपास जितने भी लोग हैं जो कि अच्छे माहौल में रह रहे हैं, उनको सारी सुविधाओं की कमी है और उनके कंपैरिजन में उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए दुख भरी है, परेशानी भरी है। यहाँ पर ये देखा जाता है कि गरीबों को जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होना चाहिए वो प्रोवाइड उन्हें नहीं हो पा रही हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रहे हैं जो कि बाकी के जो सामाजिक लोग हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। इसका एग्जांपल हम भारत के जो कास्ट सिस्टम है उससे ले सकते हैं कि जो अच्छी कास्ट के लोग हैं वो सारी फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें इन सारी चीज़ों से उन्हें वंचित किया जाता रहा है पहले। अब तो काफ़ी कुछ सुधार हो गया है। और वल्नरेबिलिटी से आशय है असुरक्षा। अब असुरक्षा किस तरह से होगी, यदि कोई भी व्यक्ति है जो कि हेल्थ उसे अच्छी प्रोवाइड हो रही है, उसे अच्छी एजुकेशन मिल रही है और यदि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास अच्छी हैं तो वो अपनी लाइफ को अच्छा बेहतर बना सकता है। लेकिन कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं या
जैसे अर्थक्वेक हुआ, सुनामी हुआ या टेररिज्म है, इन सब चीज़ों को यदि देखा जाए तो ये फिर स्टेटस और ये इस चीज़ों को, अमीर गरीबी, इन चीज़ों को ये नहीं देखती हैं। ये अगर नेचुरल डिज़ास्टर होगा या टेररिज्म है, इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी होंगी तो फिर ये सभी को इससे नुकसान पहुंचता है। और इस तरह से आने वाली जो गरीबी है वह असुरक्षित गरीबी कहलाएगी और इसमें जॉब की कमी हो जाएगी, लोग अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं।